Hello everyone, welcome to the Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our new chapter, that is chapter 1 on equality of class 7th. As we all know that we had already completed our 6th class polity, so we are going to start our 7th class polity, and the chapter first is on equality. India is a democracy. In the class 6th book, we look at the key elements of democratic government. These include people's participation, the resolutions of conflict, and equality and justice. Equality is a key feature of democracy and influence all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. So let's begin by looking at Kanta's story. As we all know, in class 6th, we have looked at the key elements, we had looked at the participation, equality, and resolution, conflicts, and justice are all the things. So, on equality, today the first chapter is on equality. So in this chapter we will learn more and more about equality, what is it, equality, how is it important in a democracy, whether it is equal or not equal. So we have to start our story by Kanta. Okay. Equal right to vote. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. जो ये स्टोरी है हमारे इक्वल राइट टू वोट, जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है कांता से, जो कि एक लाइन में खड़ी होती है, एक क्यू में खड़ी होती है टू कास्ट हर वोट, अपना वोट डालने के लिए. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर. कांता जो है वो रिकॉग्नाइज करती है कि उसके जो एम्प्लॉयर है अशोक जैन और छोटे लाल, वो भी, और जो उसके नेबर्स है वो भी कहाँ पे खड़े होते हैं, उसी लाइन में. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, all in a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. देखो in India, जो India is, as we all know that India is our democracy country, democratic country. तो इंडिया में इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, तो हम तो यहाँ पर हमें क्या होता है, वी हैव अ one vote, we have to cast a one vote, and that is all our equal. This, as you have already read in class 6th book, is called universal adult franchise. As we all know that कि हमने ये universal adult, सॉरी, क्लास 6th की बुक में पढ़ा है कि इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मीन्स कि जब हमें अपना वोट कास्ट करना, वो हम बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंडर करते हैं, एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वेलिटी. जो ये आइडिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये किस पे बेस्ड है, इक्वेलिटी पे, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन कंट्री, irrespective of their wealth and the community he belongs to, has one vote. As we all know that irrespective of वेल्थ, दौलत, या कोई भी ऐसी कम्युनिटी जहाँ से वो लड़का या लड़की या मेल एंड फीमेल जो भी बिलोंग करते हैं, या कास्ट वगैरह, हर किसी रिस्पेक्टिव के साथ हम अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हमें एक वोट होता है जो कि हमें कास्ट करना होता है. But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. अब यहाँ पे अब हमें देखना है कि equality का असल मतलब क्या है. What is it that makes Kanta unsure? वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो को कांता को unsure करती है. Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. वो एक slum area में, slum area means कि जहाँ पे बहुत से गरीब लोग रहते हैं. स्लम एरिया बोलते हैं जहाँ पे झोपड़पट्टियाँ ज़्यादा होती है, ठीक. तो वो एक स्लम एरिया में रहती हैं, और जो उसके घर के पीछे एक ड्रेन सिस्टम है, ठीक. हर डॉटर इज़ अ सिक, बट शी कैन नॉट टेक द ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चिल्ड्रन टू द डॉक्टर. जो उसकी बेटी होती है वो बहुत सिक होती, बीमार होती है, एंड
जो कांता है वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रही थी क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर से मनी टेक करने थे, बिकॉज अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्पर tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line is in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. जो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जब वो उधर हॉस्पिटल जाती है तो वो एक फिर से एक लंबी लाइन में खड़ी हो जाती है, बिकॉज जो वहाँ पे लोग खड़े होते हैं उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, वो सारे जो ये लोग होते हैं वो यूजुअली क्या है, पुअर है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, अब हम अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी देखेंगे। कांता जो है, कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग इन वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। जो कांता है वो एक ऐसी मतलब कि डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, मतलब कि कांता जैसे लोग जो है, बहुत सारे कांता जैसे लोग हैं जिनको राइट टू वोट तो होता है, बट लेकिन जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग कंडीशंस है, वो इक्वल नहीं होते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम इक्वालिटी। Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. एक तो गरीब होना, लेकिन जो लोग हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज की। इक्वालिटी की जो है, इनइक्वालिटी की डिफरेंट वेज है। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्टेड। अब जो यहाँ पे देकर है कि अब बोल रहे हैं, अब हम रियल इंसिडेंट्स देखेंगे लोगों की लाइफ के जो कि रिफ्लेक्ट किए हैं इन इक्वालिटीज़ में जो कि इंडिया में एग्जिस्ट थे। वन ऑफ द मोर कॉमन फेमस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। एज वी ऑल नो कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया कितना ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग। अगर आप रूरल इंडिया में रह रहे हैं तो आपकी कास्ट आइडेंटिटी कुछ और होती है। दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी यंग, जो कि आप लर्न और एक्सपीरियंस कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, वेरी यंग में। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम। एज वी नो, जैसे कि अर्बन इंडिया में हम रहते हैं, अर्बन इसमें रहते हैं, तो वी नो दैट हमारे जो वी थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट सिस्टम। तो हम उस पर जो है, जो अर्बन में रहते हैं, तो वो ज़्यादा कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम लीडिंग इंग्लिश न्यूज़ पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियाज। तो नाउ वी विल लुक कैसे ये जो कास्ट सिस्टम है, इनइक्वालिटीज ये कैसे ऑकर होती है एक इंडिया में, एक डेमोक्रेटिक इंडिया में। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। तो अब हमें एक यहाँ स्टोरी दी गई है एक दलित चाइल्ड की, जैसे वो कैसे अपना स्कूल को अटेंड करता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दलित्स। हमने जैसे कि क्लास 6 में पढ़ा है दलित्स के बारे में। दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। और जो दलित है ये एक ऐसी टर्म है कि जो कि बहुत ज़्यादा नीची जात मानी जाती थी। ओके, used to address themselves. Dalit means broken by using this word. जो दलित का मतलब है broken, and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. तो जो दलित पे कैसे discriminate हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ये एक फेमस दलित राइटर होते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही राइट्स। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि अपने बारे में लिखना, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो एक फेमस दलित राइटर होते हैं, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था झूठन, एक स्टोरी लिखी थी। ही राइट्स, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। जो मैं हूँ, मतलब कि जब मैं अपने स्कूल जाता था तो मैं कहाँ पे रहता था, मैं नीचे बैठता था, और जो दूसरे बच्चे होते थे वो कहाँ पे बैठते थे, ऊपर बेंच पे।
The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit away behind everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. तो ये ओम प्रकाश जी क्या कहते थे, वो कहते थे कि कभी कभी मुझे वो कहाँ पे बिठा देते थे, बिल्कुल ही दरवाजे के पास, और कभी वो मुझे बिना वजह ही मारते थे. When he was in class 6, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes the playground was way larger than my small physics could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. तो ओम प्रकाश क्या कहते हैं, जब मैं 6th क्लास में था, जो मेरे हेड मास्टर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है, जहाँ पर प्ले करते हैं, जहाँ पर खेलते हैं, तो उन्होंने क्या लिखा अपने इसमें ऑटोबायोग्राफी में कि जो उनके जो हेड मास्टर है, तो हेड मास्टर ने उनको कहा था कि आप ये जो प्ले ग्राउंड है ये स्वीप करें. स्वीप मीन्स टू क्लीन. Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. Headmaster was sitting in his room and watching me. जो हेडमास्टर है, जो डस्ट होता है वो उनके माउथ में चला जाता है, मुंह में चला जाता है. जो दूसरे चिल्ड्रंस होते हैं वो क्लास में क्या कर रहे होते, वो पढ़ रहे होते, और मैं क्या कर रहा होता हूँ, ये ओम प्रकाश ही कह रहे हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि मैं क्या कर रहा होता हूँ, मैं प्ले ग्राउंड को स्वीप कर रहा होता हूँ, साफ कर रहा है. हेडमास्टर जो है वो अपने रूम में बैठ के मुझे वॉच कर रहे थे वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और मैं मीन्स कि मुझे कि ये भी अलाउ नहीं था कि मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पी लो. आई स्वेप्ट द होल डे, और मैं पूरा दिन सफाई कर रहा था. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज saw the specters. Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज के क्या कहता है कि मीन्स कि प्ले ग्राउंड को भी मैंने सफाई की, डोर्स को, विंडोज़ को भी, मीन्स कि स्कूल के रूम्स को भी मैंने सफाई की. और जो स्टूडेंट्स है, टीचर्स, वो मुझ पे स्पेक्ट मीन्स की नज़र रख रहे होते हैं वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग. ओम प्रकाश क्या बोलते हैं कि मैंने कपल ऑफ डेज, मतलब कुछ दिन ये ऐसे ही चलता रहा, और ये ख़त्म कब हुआ, जब उसके पापा ने, जब उसके फादर ने, जब उनके फादर ने उनको देखा, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे उसके स्कूल से, तो उन्होंने जब देखा कि मेरा बेटा सफाई कर रहे हैं. He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear. तो इन्होंने क्या किया, जब वो जाती है, इन्होंने कन्फ्रंट किया टीचर के सामने कि अब अपने बच्चे को लिया, ओम प्रकाश को लिया, उनको हाथ पकड़ के, और टीचर को बोला कि सुनिए, आप सब मेरी बात सुने. यू आर अ टीचर, सो आई एम लीविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल study right here in this school, and not just him but there will be more coming after him. मतलब कि अब इन जो इसका जो इनके फादर होते, ओम प्रकाश के फादर होते, वो उनका हाथ लेकर, उनका हाथ पकड़ के जाते हैं टीचर के पास, और उनको कन्फ्रंट करते हैं कि, और वो कहते हैं कि हम अब जा रहे हैं, हम इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे. बट उनके फादर क्या बोलते हैं कि ये पढ़ेंगे, ये एक पढ़ के एक बहुत बड़े आदमी भी बनेंगे. The second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. अभी जब वो हमने देखा ओम प्रकाश की ऑटोबायोग्राफी की, उनके साथ कैसा ये उनके साथ कैसा ये किया जाता था, सलूक किया जाता था उनके स्कूल में, उनके टीचर में. अब जो सेकंड स्टोरी है ये एक कॉमन प्रैक्टिस पे है, जैसे कि हमारे कंट्री, मतलब कंट्री के कुछ पार्ट्स में होती है. इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी हु वेर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी. ये एक मिस्टर और मिसेस अंसारी की कहानी है, जो कि देख रहे होते एक अपार्टमेंट, एक रेंट अपार्टमेंट इन द सिटी, शहर में. they had the money and so paying the rent was no problem. उनके पास मनी होता है, बहुत पैसा होता है, और जो पेइंग रेंट, मतलब कि रेंट पे करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए
to help find a place. ठीक, the dealer जो है informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. जो डीलर है उन्होंने उसको उन लोगों को इन्फॉर्म किया, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को, कि यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि अवेलेबल है रेंट के लिए. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. जो फर्स्ट अपार्टमेंट में ये लोग जाते हैं, जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है उनको वो बहुत पसंद आ जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो हैव टू टेक दिस. However, when the land lady found out their names, जो लैंड लेडी है, जो उस घर की, जो उस अपार्टमेंट की ओनर होती हैं, उनको उनका जो है नाम पता चल जाता है. They found their names. She made an excuse about how she could not rent the house to someone who are 8 feet because the building did not have any non-vegetarian residents. तो ये जो लैंड लेडी होती है, दे फाउंड आउट देयर नेम्स, तो फिर होता क्या है, वो एक्सक्यूजेस बनाती है, तो और वो बोलती है कि हम किसी मीन्स की नॉन वेजिटेरियंस रेजिडेंट्स को यहाँ पे नहीं लेते हैं. बोथ अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वेर सरप्राइज. जो अंसारीज है, मिस्टर मिसेस अंसारी, और प्रॉपर्टी डीलर है, वो सरप्राइज हो जाते हैं. टू हेयर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकड इन द नेबर्स हाउस. तो वह उनके वहाँ से क्या आती है, एक स्मेल आती है, मतलब कि स्मेल ऑफ फिश आती है, जो कि उनके ही एक नेबर के हाउस से आ रही होती है. द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट. तो सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी यही सेम एक्सक्यूज कहा गया. The same excuse was repeated in the second and third apartment. Finally, the property dealer told them they might want to change their names and call them Mr. and Mrs. कुमार. जो ये होता है, प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो उनको बोलता है कि आपको अपना क्या करना चाहिए, आपको अपना नाम चेंज करना चाहिए, आपको मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के इंस्टेड आपको क्या रखना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस कुमार. द अंसारीज वेर रिलैक्टेड टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर. जो अंसारी, उन्होंने रिलेक्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ और देखेंगे, हम और देखेंगे. इन द एंड इट टुक अ whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place of rent. तो एक महीना ऐसे ही गुजर जाता है उनको अपार्टमेंट्स ही देखने में. तो फिर फाइनली क्या होता है कि वो एक लैंड लेडी से मिलते हैं, हु वाज विलिंग, वो विल थी उनके पास, हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट. तो उन्होंने क्या दिया फाइनली उनको, प्लेस ऑफ रेंट. Recognizing dignity. You have understand by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of difference of castes and religion. तो अगर हम फर्स्टली देखेंगे, जब जैसे कि ओम प्रकाश ने अपनी ऑटोग्राफी में राइट किया था जूठन में, तो वहाँ पे जो डिफरेंस थी वो कास्ट की थी. जो और सेकंड स्टोरी हमने पढ़ा मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जो वहाँ पे जो इनइक्वालिटी हो रही थी वो रिलीजन के बेसिस पे हो रही थी. When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब हम लोगों को unequally ट्रीट की जाती, तो उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द आंसर वाज वायलेटेड. जैसे कि हमने वो स्टोरीज में देखा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टोरी में, तो बोथ ऑफ द प्रकाश वाल्मीकि या अंसारी जो थे, उनकी दोनों की डिग्निटी क्या हो जाती है, उन दोनों की डिग्निटी वायलेट होती है. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he less than equal to all other students in the school. As we know that ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ कास्ट सिस्टम पे, कास्ट उस पे कितना ज़्यादा उनको वायलेट किया गया है, कितनी ज़्यादा उनकी डिग्निटी वायलेट हुई है, और जो उनकी डिग्निटी है वो बैडली एंड मेड हिम फील, और उनको क्या फील होता था कि दैट आई एम वेरी लेस from all other the students in the school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his sons, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers.
जो बेचारे ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो तो सुनते थे अपने टीचर्स की, और वो ग्राउंड साफ, डोर साफ, स्कूल के रूम साफ करते थे, लेकिन इट वाज हिज फादर जो जिन्होंने उनको देखा कि वो क्या कर रहे होते हैं स्कूल पे, प्लेग्राउंड साफ कर रहे होते हैं, और जो उनके जो फादर है वो बहुत एंग्री हो जाते हैं, और वो जो उनके टीचर उसको कन्फ्रंट करते हैं। द अंसारीज डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट, जो अंसारीज है उनकी डिग्निटी भी बहुत हर्ट होती है, बिकॉज उनको एक महीना लग जाता है जहाँ पे उनको पहले ही पसंद आ जाता है अपार्टमेंट। इंस्टेड ऑफ दैट जो वो लैंड लेडी है वो एक्सक्यूज करती है कि नॉन वेजिटेरियन जो है वो हम उनको रेंट पे नहीं देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट उनको एक महीना लग जाता है टू फाइंड अ बेटर अपार्टमेंट। ओम प्रकाश एंड द अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। जैसे कि ओम प्रकाश है और अंसारीज है, उनको ये इल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए था। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनी वन एल्स। एज वी नो, जैसे कि अभी हमें रिस्पेक्ट है, हमारी डिग्निटी की रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट है, तो सेम ओम प्रकाश और जो अंसारी है उनको भी वैसे ही रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते थे। इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम द all caste, religion, tribals, educational and economic backgrounds are recognized as equal. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे इंडिया का आइन है, संविधान है, दैट वो रिकग्नाइज करता है कि हर एक जो पर्सन है इन इंडिया दैट इज इक्वल। नो वन इज अबव द लॉ, और नो वन इज अबव द लॉ। ओके, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दिस मीन्स कि जो एवरी इंडिविजुअल है हमारे कंट्री के, इंक्लूडिंग मेल है, फीमेल है, या कुछ या ऑल कास्ट के है, या रिलीजन, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ट्राइबल कम्युनिटी के है, या एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, हर किसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है इक्वल। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है वो सीज की गई है, वो सीज हो गई है, नहीं, it does not mean that, but at least in democracy in the principle of the equality of all person is recognized। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया में जो है जो प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी है हर किसी पर्सन की इज रिकॉग्नाइज्ड, while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment। as I told you कि मीन्स कि पहले जो इंडिया में जैसे कि अभी हमने ओम प्रकाश की स्टोरी पढ़ी एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी पढ़ी, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं था जो उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक, नाउ देर आर सिवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। अब लेकिन जो अब अगर हम देखें, अब अगर कोई भी जो पर्सन है वो कोई भी काम करे, लेकिन अब हम उनको ट्रीट करते हैं इक्वली और विद डिग्निटी। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिकॉग्निशन कहाँ से आया, इक्वलिटी की रिकॉग्निशन कहाँ से आया, तब आई ये कुछ ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए कि जहाँ से जिससे हम रिकॉग्निशन करें इक्वालिटी की, ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि जो इक्वालिटी है ऑफ ऑल द पर्सन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। एज आई टोल्ड यू दैट फर्स्टली क्या है, एवरी जो पर्सन है, हर कोई पर्सन है वो इक्वल है बिफोर द लॉ। व्हाट दिस means is that every person from the president of the country of Kanta to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। means कि president से लेके उस कांता, उस domestic worker तक हर किसी को सेम ये जो ये लॉ है, जो ये कानून है, उसको ओबे करना है। Second, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste or place of birth, or whether they are female or male। सेकेंडली जो है हम किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हम रिलीजन पे करें, वो रेस पे करें, कास्ट सिस्टम पे करें, नहीं, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, हमें हर किसी को इक्वली ट्रीटमेंट देना है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड। और थर्डली क्या है, हमें हर पर्सन को अलो करना है हर किसी जगह, लाइक प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो या मार्केट्स हो। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ होता था कि जब वो स्कूल अटेंड करते थे, जब अपने स्कूल जाते थे, दे यूज टू स्वीप होल डे, ठीक, और दे यूज टू सिट ऑन द डोर। ओके,
all persons can use publicly available wells, roads and bathing guards. जो हर कोई पर्सन है वो पब्लिकली जो भी चीज़ें अवेलेबल है बाय द गवर्नमेंट और बाय एनीथिंग एल्स, तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते. फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश. जो अनटचेबिलिटी अछूत है वो क्या हो गए हैं, अबॉलिश किया गया है. ठीक. द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or scheme to help disadvantaged communities. दो वेज है जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, कोशिश की है उनको गारंटी देने की. जैसे कि फर्स्टली दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि थ्रू लॉज की मदद से हमें क्या करना है, इन सारी इल ट्रीटमेंट को प्रोटेक्ट करना है. देयर आर सिवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequal for several centuries. ठीक. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. One of the steps taken by the government includes the mid-day meal scheme. जो एक और स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने उठाया है, इंक्लूडिंग मिड डे मील scheme. This refers to the programs introduced in all government elementary school. ये प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, एलिमेंट्री स्कूल, गवर्नमेंट की जो है एलिमेंट्री स्कूल पे. टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुकड लंच, तो वो प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रंस को कुकड लंच. तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम. जो तमिलनाडु है ये फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जो जिन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट मील, ओके, कुकड लंच. एंड इन 2001, और कब किया है, 2001. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 months. जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा हर किसी स्टेट की गवर्नमेंट को कि ये वाला जो प्रोग्राम है जो कि तमिलनाडु ने स्टार्ट इंट्रोड्यूस किया है, ये विद इन 6 months हर किसी स्कूल में ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इस प्रोग्राम के बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं. जस्ट लाइक दिस इंक्लूड इज द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. जैसे कि बहुत सारे जो लोग जो पुअर चिल्ड्रन हैं दे हैव बिगन एनरोलिंग, मीन्स कि वो अपने आप को स्कूल में क्या करेंगे. These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch. जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज़ किया, जो पहले क्या होता था कि जो बच्चे हैं वो घर जाते थे लंच के लिए एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और फिर वो रिटर्न नहीं करते थे स्कूल. बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड. अब जबकि ये जो मिड डे मील है वो प्रोवाइड किया जाता है स्कूल में ही, जो उनकी अटेंडेंस है वो इम्प्रूव हो गई थी. Their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day. जो वो मदर जो अपना काम को मीन्स कि इंटरप्ट करती थी, अपना काम उधर ही छोड़ती थी और अपने घर आती थी बिकॉज दे नो कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है, फीड करना है. नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो. अब वो जो मदर्स हैं उनको भी वो एक आराम मिला कि अब उनको पता था कि अब हमें उनको कोई फीडिंग प्रोवाइड नहीं करनी है बिकॉज जो स्कूल है वो उनको मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं. दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. तो इससे क्या होता है, इस प्रोग्राम से क्या हुआ, इस प्रोग्राम से बहुत मदद हुई टू रिड्यूस जो कास्ट के प्रेजुडिस है वो, बिकॉज लोअर और अपर जो कास्ट के ये चिल्ड्रंस हैं इन द स्कूल वो एक ही मील खाते हैं, ईट दिस मील टुगेदर एंड इन अ क्वाइट प्लेसेस. दलित वुमेन हैव बीन प्लेड टू कुक द मील. द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प्स reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. जो दलित वुमेन है बिन एम्प्लॉयड टू कुक, तो दलित वुमेन को क्या किया गया, एम्प्लॉयड किया गया, मीन्स कि उनको हायर किया गया टू कुक द मील. द मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो जो ये है
इन्होंने क्या रिड्यूस किया, इज आल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस द हंगर, भूख ऑफ एक पुअर, एक गरीब मीन्स की स्टूडेंट की, जो कि हु ऑफन कम, वो स्कूल तो आते थे अक्सर मगर वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते थे बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्पटी. While government programs plays an important role in increasing equality of opportunity, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है उन्होंने बहुत एक ख़ास इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है इंक्रीजिंग इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी में. देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, मगर फिर भी जो गवर्नमेंट है दे आर थिंकिंग दैट देयर इज़ मच, वहाँ अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टिल नीड्स टू बी डन. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, जो ये मिड डे मील है इसने क्या हेल्प किया, इंक्रीज इन द एनरोलमेंट एंड एनरोलमेंट में हेल्प की और अटेंडेंस में ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन school. There continues to be big difference in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmi are discriminated against and treated unequally as जैसे कि अभी हमने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि को कैसे डिस्क्रिमिनेट और कैसे अगेंस्ट था उनकी अनइक्वलिटी को ट्रीट he had treated very unequally. These children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. और जो ऐसे ओम प्रकाशी जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो डिग्निटी है उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता. This is because people refuse to think of them as equal even though the laws requires it. लेकिन जो लोग हैं ये किसकी वजह से होता है, हम लोगों की वजह से, कि हम नहीं सोचते हैं कि हमें भी इन्हीं लोगों को क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है जैसे कि हम हैं वैसे वो लोग भी हैं. One of the main reason for this is that attitudes change very slowly. As we know, one of the main reason for this is that attitude जो है वो change होता है बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है. Even though persons are aware the discrimination against law, अगर मतलब कि जैसे कि लोगों को पता है, persons know, they are aware that discrimination जो है is very against that law. Okay, the law that continue to treat people unequally on the basis of their caste religion. So hence proved that attitude जो है वो change होता है बहुत ही स्लोली. अगर हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अगेंस्ट ला है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड होता है हम फिर भी अब उन्हीं लोगों को ट्रीट करते हैं अनइक्वल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, देयर रिलीजन, देयर डिसेबिलिटी, देयर इकोनॉमिक स्टेटस, या हम सोचते हैं दैट दिस इज़ वुमेन, गर्ल, लेडी, तो हम क्या करते हैं, हम उनको इन सारी चीज़ों पे अनइक्वल ट्रीट करते हैं. लेकिन इवन दो क्या होता है, ये सारा जो है ये अगेंस्ट लॉ है. इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर. ये तब पॉसिबल होगा कि जब लोग सोचेंगे कि नो वन इज़ इन्फीरियर, कोई भी बड़ा नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. हर किसी पर्सन का ये अधिकार है, ये राइट है कि हम हर किसी को ट्रीट करें विद डिग्निटी. दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज. तो आज के जो ये एटीट्यूड्स है ये इससे चेंज हो जाए. एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस बुक. तो अब हमें देखना एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये अभी भी एक स्ट्रगल है. तो अब हम देखेंगे कि we will learn more something about it. Issues of equality in other democracies. You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which the community struggles. जो अगर हम द ट्रुथ, अगर हम सच्चाई की बात करें कि जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पर एक ही इशू क्या है, जो वहाँ पे एक ही इशू है इक्वालिटी. वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग अबाउट द इक्वालिटी. So for the example, in the United States of America, the African Americans who ancestors were the slaves who were brought over from Africa. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA की, जहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके जो एंसेस्टर्स थे वो स्लेव्स थे, वो गुलाम थे, who were brought over from Africa, जो कि अफ्रीका आए थे. कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. अगर हम आज की बात करें, आज भी उनको लार्जली अनइक्वल
ट्रीट किया जाता है. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. तो वहाँ पे लेट 1915 में क्या होता था कि टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, वहाँ उनको पुश किया जाता था फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन. प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली. जो अमेरिकन के जो अफ्रीकन्स है वो उनको एक्सट्रीमली क्या अनइक्वली ट्रीट किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ. तो उनको डिनाई किया जाता था इक्वलिटी पे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, मतलब कि इधर एक एग्जांपल दिया गया था जब वो ट्रैवल करते थे बाय बस, बाय ईदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेन एवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट. तो क्या होता था जब भी एक ब्लैक जो है वो ट्रैवल करते थे बस में, तो जब भी कोई वाइट पर्सन अंदर आता था तो उनको क्या करना तो होता था, उनको वहाँ से मीन्स कि वो वहाँ पे गेट अप हो जाते थे और वो जो सीट है वो किसको वो प्रोवाइड करते थे, एक वाइट पर्सन को. रोसा पार्क्स वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन. जो रोसा पार्क्स है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन है. टायर्ड from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 December 1955. रोसा पार्क्स जो है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन की ये एक वुमेन होती है. वो एक बहुत वो थकी हुई आती है अपने वर्क से, अपने काम से. तो वो क्या करती है जब वो बस में ट्रैवल करती है तो वो जब जैसे कि एक वाइट अंदर आता है, ही विश टू सिट देयर, तो जो रोसा पार्क्स है वो उसको डिनाई करती है, वो उसको रिफ्यूज़ करती है. ठीक है, एक वाइट मैन को मीन्स कि उस सीट पे बैठने से. तो ऑन 1 December 1955 की बात है. हर रिफ्यूज दैट डे स्टार्ट अ ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वे. उनका डिनाई करना, उनका रिफ्यूज़ करना मीन्स कि वो जो दिन था वो स्टार्टेड अ ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल. ठीक, ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट. वो उनका मना करना तो वो मतलब कि वो किस में बदल गया, एक सिविल राइट मूवमेंट में. द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ राइट. 1964 में जो ये प्रोहिबिटेड किया गया था डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस of race, religion or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. तो यूएसए में क्या होता था अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, जो उनके लिए स्कूल्स भी अलग थे, ब्लैक्स के लिए स्कूल्स भी अलग थे. और अब अगर वो बस में ट्रैवल करें और फिर वहाँ पे एक वाइट आए तो उनको क्या करना होता था, उनको अपनी सीट को मीन्स कि अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी और वाइट वहाँ पे बैठा करता. हाउएवर डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री. जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है कंटिन्यू टू बी, वो मतलब कि उस पूरी कंट्री में वो बहुत गरीब माने जाते हैं. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल. जो वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन जो ये चिल्ड्रंस होते थे वो मतलब कि वो क्या अफोर्ड करते थे, ओनली गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव fewer facilities and poorly qualified teachers are compared to white students who either to go to private school. As we all know that कि अब अगर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा जा रहा है वहाँ पे बहुत ही कुछ ही फैसिलिटीज़ थी और जो वहाँ के टीचर्स थे वो poorly qualified थे एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें प्राइवेट स्कूल्स ऑफ white students, where the government schools are highly rated as private schools. Challenges of democracy. No country can be described as being completely democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. Central to this is the struggle for the recognition of all persons is as equal and for their dignity to be maintained. देखो जो ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल स्ट्रगल है कि हम जो पर्सन्स हैं, हम जो लोग हैं, हम दूसरे
दूसरे पर्सनस को क्या करते हैं, अनइक्वली ट्रीट है, बिकॉज जो हमारे एटीट्यूड्स है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते हैं। स्टिल आज भी कास्ट बेसिस पे, का रिलीजन पे, रेस पे या हर किसी चीज़ पे जो है डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, बिकॉज वी नो, इवन दो वी नो दैट दीज ऑल द थिंग्स जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ये अगेंस्ट द लॉ है। अगर हम किसी को बाई कास्ट क्या करें, डिस्क्रिमिनेट करें, उनकी डिग्निटी को वायलेट करें, तो ये अगेंस्ट द लॉ है। लेकिन स्टिल जो हमारे एटीट्यूड्स है वो क्या है, वो धीरे धीरे ही चेंज होती हैं। लेकिन जो इसमें क्या कितनी ब्यूटीफुली ये हमें एक्सप्लेन किया गया है दैट हमें क्या करना चाहिए, हमें हर किसी को क्या करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए हर किसी को, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर रेस, देयर जेंडर, देयर सेक्स, देयर रेशियो, हर किसी के बेसिस पे हमें उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि हम खुद को देखते हैं, हमें बाकी लोगों को भी वैसे ही देखना चाहिए। इन दिस बुक यू विल रेड अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। जो हमें पता है जब कि इंडिया है ये एक हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर एक रिलीजन जो है वो फॉलो अप नहीं होता है, यहाँ पर एक लैंग्वेज फॉलो नहीं होती, यहाँ पर एक रिलीजन फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर एक कास्ट फॉलो नहीं होते। जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक। एज यू रीड दिस चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। अब अगर कि हमने जैसे ये चैप्टर पढ़ा, हमने देखा कि इक्वालिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी पर्सन के लिए। अब अगर हमें ये पता लग गया है कि अब इक्वालिटी कितनी ज़्यादा मीन रखती है हमारे लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू बी एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी is upheld. So your chapter finishes here, first chapter. Thanks for watching.